Haji Ghulam Muhammad Azam Education Trust is a very, very old, maybe 100 and odd years. But we came in contact with this institution as well as the people who were giving us support, including some of the support in finance. So now, at that stage, we had only 500 students, 200 girls and 200 boys. And subsequently, the area where we are now sitting, we wanted that this area should also be taken for educational purposes. So we visited this area and we came to know that it is being encroached by the surrounding people, and they were all drunkards. So when I came here and I told them, "Who are you?" So they said, "Who are you to talk to us?" Ladies वगैरह सब बैठे हुए पी रहे, यहाँ चाहिए ये जगह. So I said, "Who are you to ask me this? What you want to do it?" मेरे पास गन थी. I just took out the gun and I fired up and I said, "Now you are giving or leaving or not?" So they started running from here. Till today they have not come. So then it was like this the situation. 17 years back we started poor, needy, deserving students to have some sort of a technical knowledge, and that technical knowledge was for a month, maybe sometime 2 months, and to poor and needy people who don't know ABCD of something different, something new. And it started today 17 lakhs students have been trained, and no one can believe what they are trying to give to others wherever they are staying. And they are also number one, and adjacent to them they are going to train thousands and thousands of students coming from poor background. So what wanted, how many we have trained? 17 lakhs. Not a single rupee is charged for staying, for khana, and also for whatever they want. Not a single NP is being tell them to pay. So these are the things which we have done, and history is created because of that. So today in our Azam campus, in addition to what I was explaining just now, we have just 33,000 students, and therefore we are first number in India, not other big institution this and that. Today everybody knows Azam campus. डॉक्टर P.A. इनामदार, ये क्यों मालूम हो रहे हैं? बिकॉज उस तरीके से इन चीज़ों को किया गया है. 15 प्रोफेशनल कॉलेजेस एक कैंपस में हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक P.A. इनामदार यूनिवर्सिटी, दूसरी मैडम आबेदा इनामदार यूनिवर्सिटी. 2 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर. आई एम अ ऑफिशियली गवर्नर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. सो कैन यू बिलीव कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, प्रोवाइडेड व्हाट यू डू फॉर अदर्स. तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये चीज़ों को आगे बढ़ाना है अपने को, और गरीब बच्चों के लिए हम लोग फिर जात पात कुछ नहीं हमारे पास. अभी यहाँ पे जो ट्रेनिंग चला हुआ है, सब कम्युनिटी के लोग हैं कि नहीं, एंड सबसे कम लोग मुस्लिम हैं, क्योंकि हम मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और कुछ नहीं जानते. हम इंसानियत को जानते हैं, और इंसानियत से जो निकल के बाहर निकल रहा है वो वहाँ के सारे लोग जानेंगे जहाँ पे ये बच्चे जाके बात करेंगे. और वही तरीक़ेकार है राइट फ्रॉम डे 1. और हमने गरीबी वगैरह सब देखी हुई है, और उसके बावजूद आज हम ये कर सक रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है. और जब ऊपर वाला कोई मर्ज़ी देता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसका क्या स्ट्रेंथ होता है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे. I am Abida Inamdar, Vice President, Maharashtra Cosmopolitan Education Society, Pune. Under the MC Society, we have a PI ICT where we give lot of skills to young
and talented students, and that skills give confidence to them. And many students from outside Pune, outside Maharashtra, they come, they stay here for 1 month. The stay is free, food is free, the training is free. And this message has been gone कि young students, they have talent, they have to only been trained properly. Particularly the skill has to be given which is needed in future, so that they will get proper training and also get proper employment. With this intention, I think lots of students have taken the advantage, and many of the students, they have also benefited because of this skill. And I am really sure that these students will never have any problem, and they can face the challenges of the future. They'll always be successful, they'll always be independent and self-reliant. The AI, ML, IoT and blockchain and other IT courses being conducted by Pi ICT Academy in Pune are to make our students and students all over the world present and future IT ready in terms of a job and whether they want to start a business. These sort of courses are also going to help people remotely in making people aware of these subjects, and to also look at how this can impact society in the future. Hello, good morning to all of you all. I am here to give you a little briefing about the Pi ICT Academy, what is going in the academy and what it is and what we are going to do in the future. आतापर्यंत आपल्या तिथे लाखो स्टुडंट्स आपण ट्रेन केलेलो आहे अक्रॉस इंडियावरनं, आणि तेही अंडर द गायडन्स ऑफ डॉक्टर पी ए इनामदार सर आणि आबेदा मैडमचे अंडर आम्ही गाइडेंस के अंडर ट्रेन केलेलो आहे. और हम इनको बच्चों को रोबोटिक्स, मोबाइल रिपेयरिंग, स्पोकन इंग्लिश, हार्डवेयर, एम ब्लॉक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं. हमारे अंडर ऑलरेडी 1 मंथ का ट्रेनिंग चल रहा है टीचर्स का, जहाँ पे 1150 टीचर्स ने एनरोल किया है और डेली AI, ML, IoT, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं. ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तनवीर इनामदार सर जो ट्रस्टी है हाजी गुलाम के, उनके गाइडेंस के अंडर ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें अक्रॉस इंडिया हमारे यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया है. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है. ऑफलाइन जो है वो कैंपस में चल रहा है, ऑनलाइन का हम डेली यूट्यूब पे लाइव करते हैं. तो इट इज़ थैंक्स टू द मैनेजमेंट, पूरा आज़म कैंपस का टीम, आज़म कैंपस फैमिली, कि हम ये सब चीज़ें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं. मोटो यही है कि जितने भी बच्चे और टीचर्स यहाँ से सीख के जाएंगे, उन्होंने अपनी स्कूल में वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है, और अपनी एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनको सबको ट्रेन करना है. तो दिस इज़ द चेन. अभी तक हमने लैक्स में स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं ऑल ओवर इंडिया, जो इंडिया में कहीं भी नहीं हो रहा है. ये इनामदार सर का विजन था कि बच्चे IT से रिलेटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए. अभी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ड्रोन्स बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं. सो प्लीज़ विथ अस एंड थैंक यू फॉर ऑल एंड ईच एंड एवरीवन फॉर द सपोर्ट. अज्ञानी राजपूत आणि मी जीप प्रशाला नागत येथून आलेली आहे. आमच्या ग्रुपमध्ये एकूण 11 मुली आहेत आणि मी आज आमच्या येथे यायचा प्लॅन कसा बनला, आमचा प्रवास कसा झाला आणि आम्हाला येथे येऊन कसं वाटलं, हे सगळं तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आम्ही एक एक्झाम दिला होता, MTS मिशन टॅलेंट सर्च. त्या एक्झाममध्ये आम्ही इतक्या मुली सिलेक्ट झालो आणि आम्हाला जेव्हा माहीत पडलं की आम्ही पुण्याला जाण्यासाठी सिलेक्ट झालो आहोत, आम्ही खूप जास्त पुण्याला यायला आम्ही खूप जास्त एक्सायटेड होतो. इकडे आम्ही 30 तारखेला आमचा प्रवास सुरू झाला पुण्याला यायला. पुण्याला आम्ही 30 तारखेला पोहोचलो. आल्या सगळ्यांनाच उत्सुकता होती की दुसऱ्या दिवशी म्हणजे पहिल्या दिवशी काय होणार, काय कसं शिकवणार, कोण शिकवणार. तर आम्ही पहिल्या दिवशी आलो तर आल्यावर इतके आश्चर्यचकित झालो की आमच्यापेक्षा लहान किंवा आमच्या एजचे मुलं आम्हाला शिकवत आहे. हे पाहून आमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स तर खूपच आला, पण आम्हाला ते शिकवताना बघून आम्हाला वाटायचं की आम्ही पण शिकवू शकतो. मेरा नाम श्रेया बोरसे है और मैं पौधा इंटरनेशनल स्कूल चालीसगांव यहाँ से आई हूँ. मैं पुणे में आज़म कैंपस यहाँ पे ICT कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आई हूँ. लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में गूंजता था, अगर कोर्स के बीचों बीच किसी को मेडिकल इमरजेंसी या हेल्थ केयर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो. लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया था.
यहाँ पे ऑनरेबल मिस अबिदा इनामदार मैम, इनके अंडर यूनानी हॉस्पिटल में हमारे हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट की पूरा ध्यान रखा गया था। अगर हमें किसी को मेडिकल इमरजेंसी आए या फिर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमें हॉस्पिटल में ले जाया जाता था। अगर हम वहाँ पे बोलते थे कि हम ICT कोर्स के स्टूडेंट्स थे तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलती थी। और ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि हमें रात के 3 बजे भी मेडिकल इमरजेंसी आई थी, तब भी हमें हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दी गई थी। नमस्कार, माझे नाव श्रावणी अशोक राऊत आहे. मी शिऊर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथून आले आहे. माझ्या शाळेचे नाव ZPP स्कूल सफिया बादवाडी आहे. जेव्हा मी इमॅजिन केलं होतं की आमची पुण्याच्या ट्रेनिंगमध्ये जे हॉस्टेल आहे ते कसं राहील, पण मी जे इमॅजिन केलं होतं त्यापेक्षा हे खूपच चांगलं आहे. आमच्या हॉस्टेलच्या म्हणजे रूममध्ये बाथरूम अटॅच असल्यामुळे आम्हाला काही गैरसोय होत नाहीत. आमची जेवणाची व्यवस्था खूपच चांगली आहे. आमच्या म्हणजे पाणीची व्यवस्था पण खूप चांगला आहे. उन्हाळा असल्यामुळे इथं थंडगार पाणी पण पिण्यासाठी सुविधा खूप छान आहे. ICT टीम आम्हाला खूपच हेल्प करते. या सर्वांमुळे मी सर्वांना धन्यवाद बोलते. नमस्कार, माझे नाव जयश्री प्रल्हाद बोरसे आहे. मी इयत्ता 10वीत आहे. मी DR कन्या स्कूल येथून आलेली आहे. आम्ही जे विषय इकडे शिकलेलो आहे, जो आमचा कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे, तोच आम्हाला आमच्या गावाकडे घेऊन जायचा आहे आणि त्यांचाही कॉन्फिडन्स वाढवायचा आहे आणि त्यांना सांगायचं आहे की फ्युचरमध्ये आपले कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टन्स आहे आणि त्यांना आमचे नॉलेज शेअर करायचं आहे आणि आम्ही जे नॉलेज त्यांना शेअर केलेलं आहे तेच ते नॉलेज दुसऱ्यांना शेअर करावं हीच आमची आशा आहे. थँक्यू इनामदार सर अँड थँक्यू मिसेस इनामदार मॅम.